So now we solve another example. The question is that the American Management Association is studying in the income of a store manager in the retail industry. A random sample of 49 managers reveals a sample mean of 45.2420. The standard deviation of the population is 2050. The association would like the answer is following. So हमें फाइंड क्या क्या करना है. What is the population mean? What is the reasonable range value for the population mean? How do we interpret these results? So here we know that the sample mean 45420 and the population mean we don't know. So hence it's our the best estimation of unknown population. यहाँ पर हमारे पास पॉपुलेशन का मीन अवेलेबल नहीं है, तो हमने क्या किया है, जो हमारा सैम्पल मीन है हमने उसे ही यूज़ किया है. द सेकेंड स्टेप इज़ व्हाट इज़ द रीज़नेबल रेंज वैल्यू फॉर द पॉपुलेशन मीन. सो वही हम फार्मूला लगाएंगे अपना इंटरवल का, कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला, एक्स बार प्लस माइनस जेड standard deviation divided by under root n. So what is our x bar? Our mean x bar denote the mean 45420 हमारा क्या हो गया, मीन हो गया, प्लस माइनस कॉन्फिडेंस इंटरवल. क्वेश्चन में मेंशन है द एसोसिएशन डिसाइड टू यूज 95% कॉन्फिडेंस लेवल. सो जहाँ पर भी 95% कॉन्फिडेंस लेवल होगा वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1.96. वही हमारा मीन क्या, हमारा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन है इसमें, तो जो है वो क्या है हमारा गिवन है ऊपर 02050 और हमारी सैम्पल साइज़ क्या है 49. जब हमने इसको सॉल्व किया आपस में तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 5474. ठीक है, मीन हमारा वही रहेगा, तो अगर हम उसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45994 और माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 44846. दैट मीन के सो दैट इज़ आवर इंटरवल लिमिट एंड दिस इज़ आवर मार्जिन ऑफ एरर. ये जो है हमारा आंसर जो आ गया, ये क्या था, हमारा मार्जिन ऑफ एरर था. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन. So we can use the sample standard deviation to estimate the population standard deviation. So that is we use S is the samples standard deviation to estimate the standard deviation estimate the sigma population standard deviation. We cannot use the zeta distribution. We replace the z distribution with the t distribution. T distribution is continuous probability distribution with many similar characteristics. That is the formula of T distribution. T equal to x bar minus mu divided by standard deviation, sample standard deviation, and under root n. So इसमें मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि हम जी टेस्ट और टी टेस्ट, जी डिस्ट्रीब्यूशन और टी डिस्ट्रीब्यूशन कब अप्लाई करते हैं. जी डिस्ट्रीब्यूशन हमारी हमेशा तब अप्लाई होती है जब हमारी सैम्पल साइज़ मोर देन 30 हो और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन हो. और टी डिस्ट्रीब्यूशन हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारी सैम्पल साइज़ लेस देन 30 हो और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो. ठीक है, और जो हमारा टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मोर फ्लैटर होता है एज़ कम्पेयर टू जेड डिस्ट्रीब्यूशन के. सो द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ मोर फ्लैटर एट द सेंटर. ठीक है, एजम्पशन दैट ये इसकी एजम्पशन है. अब हम क्या करते हैं, इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ थोड़ी सी और क्लियर हो जाए. So question is that the confidence interval for the population mean as standard deviation is unknown. So what is the formula of that? X bar plus minus t distribution. t हम t distribution apply करेंगे, sample size sample standard deviation होगा और अंडर रूट में हमारा क्या आ जाएगा, वही सैम्पल आ जाएगा n.
sample size आ जाएगा n. Example, a tire manufacturers wish to investigate the trial life of its tires. A sample of 10 tires driven 50,000 miles revive a sample mean of 0.32 of tires remaining with the standard deviation of 0.09 inches. Construct a 95% confidence interval for the population mean. Would it be reasonable for the manufacturer to conclude that after 50,000 miles, the population mean amount of the trade remaining in 0.30 inches? So began we assume that the population distribution is normal. A lot of evidence, but the assumptions is a probable, reasonable. We know the sample standard deviation is 0.09. Our mean is 0.32. Sample size is 10. Standard deviation is 0.09. Our confidence interval is 95%. So let's put in the formula and solve it. ठीक है. The column on the left margin is identified as इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है. वो क्या होगी कि टी जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर जो टी है वो थोड़ी सी जेड टेबल से डिफरेंट है. तो हम क्या करेंगे, अपनी जो टी डिस्ट्रीब्यूशन की जो वैल्यू है वो हम कहाँ से निकालेंगे, वो हम निकालेंगे अपनी टी डिस्ट्रीब्यूशन से. सो वहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले वहाँ पर कॉलम होता है. द कॉलम ऑन द लेफ्ट मार्जिन इज आइडेंटिफाइड एज द डिग्री ऑफ DF, डिग्री ऑफ फ्रीडम. The number of degree of freedom is the number of observation in the sample minus number of sample n minus 1. डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, वो हमेशा तब वो उस पर हमें क्या करते हैं कि हमारा जो भी नंबर डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमें अपनी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारी जो भी सैम्पल साइज़ होगी उसमें से हम -1 कर देंगे. यहाँ पर हमारी सैम्पल साइज़ 10 है तो उसमें से -1 कर देंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी. ठीक है. तो टेबल में हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो साइज़ होगी वो 9 लेंगे और जो हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल की परसेंटेज है वो भी टेबल में गिवन है. वो जो है 95% 0.05 की लाइन में जाके 9 की रो में देखेंगे तो हमारे पास 2.262 आ जाएगी वैल्यू. ठीक है. और मैंने आप लोगों को फाइंड करना सिखाया है कि जेड टेबल में चीज़ें कैसे फाइंड की जाती हैं, वैल्यूज़ कैसे फाइंड की जाती हैं. और एक बार फिर इन द एंड में आपको, इस वीडियो की एंड में मैं आपको फिर से बताऊंगी कि टी डिस्ट्रीब्यूशन में से वैल्यू फाइंड आउट कैसे की जाती है प्रैक्टिकली. यहाँ पर मैंने आपको वर्बली बता दिया, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के एंड में फिर से करके भी दिखाऊँगी कि ये कैसे फाइंड आउट की जाती है. अब वही फार्मूला, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास मीन की वैल्यू क्या है 0.32 प्लस माइनस हमारे पास ये टी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू आ गई. अब हमारे पास क्या है 0.09 अंडर रूट में 10 है. इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.064. अब वही हमारे पास क्या आ गया, मार्जिन एरर आ गया. अब हम क्या करेंगे, इसको 0.32 में प्लस भी करेंगे, उसके बाद 0.32 में माइनस भी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा. द एंड पॉइंट कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ 0.256 एंड 0.384 इसका आ जाएगा, ताकि हमें पता चलेगा कि हम 95% कॉन्फिडेंस हैं कि हमारा जो आंसर है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है. इंटरप्रिटेशन, अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, जो थर्ड पॉइंट थी हमारी वो ये है कि it is the conclude that the population mean is n and this interval the manufacturer can be reasonable surely 95% confident that the mean remaining trial dipped in between 0.256 and 0.384 inch because the value of 0.30 in this interval. It is possible that the mean of the population is 0.30.
Here is another example of t distribution, or we can say the population mean is standard deviation is unknown. So the question is that the example is here. Okay, the manager of the Lucky One Mall, he want to estimate the mean amount of spend per shopping visit by the customer is a sample of 20 customer of, and the standard deviation is 9, and the sample standard deviation is 9.09. so that is our 20 customer. ठीक है, हमने क्या किया, हमारे पास ये वैल्यूज़ है सारी 8.16 से लेके 61.69 तक, ये टोटल 20 वैल्यूज़ हैं. हमने क्या किया, इसका मीन निकाल दिया. सिंपली हम मीन कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को इन सारे अमाउंट को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा मीन निकल आता है. तो हमारे पास मीन क्या आया, 49.35. व्हाट इज़ द पॉपुलेशन मीन. ठीक है, उसके बाद है डिटरमाइन 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, और उसके बाद इंटरप्रेट द रिजल्ट्स आ जाएगा. सॉल्यूशन में सिंपली वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे. पॉपुलेशन मीन हमारे पास वही आ गया जो हमने निकाला था. ये हमारे पास पॉपुलेशन गिवन है और उसका हमने मीन निकाल दिया उसी तरीके से. उसके बाद 95% कॉन्फिडेंस लेवल है, तो वी फाइंड द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फ्रॉम द टी टेबल में वही हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला फार्मूला क्या है, n-1 है. तो हमारे पास इस बार सैम्पल साइज़ कितनी है, 20 है. 20 में से हम 1 माइनस कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा. उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 19 को 95% डिग्री कॉन्फिडेंस लेवल में देखेंगे तो हमारे पास अमाउंट क्या आ जाएगा, टी टेबल क्या आ जाए, टी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.262. सो नाउ अब इसको हम पुट करेंगे फार्मूला में. हमारे पास मीन हमारा क्या है, एक 49.39 प्लस माइनस 2.626. ठीक है, ये हमारी क्या है, टी डिस्ट्रीब्यूशन है और टी वैल्यू है. अब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल क्या था, 9.01. इसको हमने डिवाइड कर दिया √20 से. सैंपल साइज हमारा 20 था. वही बात, हमें मार्जिन ऑफ एरर मिल गया. अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, पहले माइनस करेंगे फिर प्लस कर देंगे. तो हमारा इंटरप्रिटेशन इसमें क्या आ जाएगी, द एंड पॉइंट ऑफ द confidence interval and are 45.13 and 53.57. The reasonable conclude is that the population mean. हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया कि हम 95% कॉन्फिडेंस है और हमारी जो कॉन्फिडेंस लेवल की रेंज है वो ये आ गई है. Proportion, the fraction ratio or a percent indicating the part of the sample or the population. For example, a recent survey indicated that the 92 out of 100 people surveyed favored the continued use of daylight survey time in summer. The sample is 92 divided by 100 or 0.92 or 92%. आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो. So if we let p% is the sample proportion, x is the number of the items, x is the number of success and n is the number of items sampled, we can determine the sample proportion is like, ये हमारा sample proportion का फार्मूला है, p equal to x divided by n. Confidence interval for a population proportion. अब हम confidence interval for population proportion कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका फार्मूला क्या है, वहाँ पर जहाँ पर x बार था वहाँ पर p आ गया, प्लस माइनस सेम रहेगा, z जो है हमारा वहाँ वो भी सेम रहेगा, और यहाँ पर p ब्रैकेट ओवर 1 माइनस पी डिवाइडेड बाय n और ऊपर से अंडर रूट आ जाएगी. ये हमारा फार्मूला है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को फाइंड आउट करने का. एक प्रॉब्लम एग्जांपल है यहाँ पर, वो हम कर लेते हैं. यहाँ पर है कि the union representing the bottle bowler of America (BBA) is considered a proposal to merger with the Teamsters Union. According to BBA union bylaws, at least three-fourth of the union member
membership must be approved any merger. A random sample of the 2000 current PBA members 1600 plan to the vote for the merger proposal. So what is the estimate of the population proportion? Number 2, develop the 95% confidence interval for population proportion. The third one is that's the 2 point. The first, we calculate the sample proportion mean. ठीक है, तो हमने क्या किया है, 1600 हमारे क्या थे, वोट हुए थे, और टोटल हमारा क्या है, टोटल हमारा सैम्पल कितना जो है, हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 2000 है. जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास 80% चांस 80% आ गए. 0.80 बोल दें या 80% बोल दें, इट्स द सेम थिंग. Thus, we estimate that 80% of the population favor the merger proposal. We determine the 95% level of confidence is 1.96. So, the P plus minus Z under root P bracket over 1 minus P bracket close divided by N. So, what is our P? Our P is 0.80, our N is 2000, and our Z value is 95% confidence level 1.96. So 0.8, our P is 0.80 plus minus 1.96, our confidence interval 95%. अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे. जहाँ पर P की वैल्यू है वहाँ पर 0.80 लगा देंगे. 1 माइनस 0.80 डिवाइडेड बाई 2000. जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर क्या आ गया, 0.018. ठीक है, अब मार्जिन एरर को हम क्या करेंगे, पहले प्लस कर देंगे 0.80 से, उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे. तो द एंडिंग पॉइंट ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल आर 0.782 and 0.818. So the lower end point is greater than that. The merger proposal will likely pass because the interval estimate include the value greater than 75% of the union member. सिंपली यहीं पर क्या होगा कि ये हमारा क्या हो गया, ये एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोल रहा था अगर 75% मेंबरशिप हमारे जो है वो एग्री हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, मर्जरशिप के लिए, मर्जर करने के लिए 75% मेंबर्स हमारे एग्री होने चाहिए. तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो 75% से ज़्यादा आया है. दैट मीन कि यहाँ ये एक्सेप्टेबल है.